Conflicts in Africa or military coups in Africa has been a very popular theme asked by the Union Public Service Commission in the last 3 years of your prelims exam. And in this video, I am going to discuss about the conflict which is unfolding in front of us pertinent to South Sudan. Welcome to the video. Thank me later. I am your educator, Kuber Singh, and I'm going to discuss in detail about how this conflict is unfolding and who are the various actors involved in this conflict. Please do comment Juba in the comment section so that I can get to know कि आप में से कितने बच्चे ये attentively सुबह 6 बजे वीडियो देख रहे हैं. Have a look at the map. So the capital of South Sudan is Juba. Now let me also tell you that South Sudan is one country which is marred by sectarian violence, by ethnic violence, by civil war since it has got independence. South Sudan as a country got independence in 2011 from Sudan. Now the demographic orientation in South Sudan is such that in South Sudan you have majority of the people following Christianity, and most of the people who are following Christianity, they are dispersed into different tribes, into different clans. लेकिन अगर हम सुदान की बात करें, सुदान में majority of the people are Arab Muslims. Now between Sudan and South Sudan as well, since 1982 to 2005, there was a long civil war. If we look back at the history of Sudan, Sudan got independent from British and Egypt rule back in 1956. 1956 से लेके अभी आज 2025 तक सुदान और साउथ सुदान दोनों में बहुत इंस्टेबिलिटी है. साउथ सुदान for its identity, for its own unique tribal culture, has been fighting with the Sudan since 1956. There was a long civil war which happened between 1982 to 2005 between Sudan and South Sudan, and 2011 में South Sudan became an independent country. Since 2013, it's 12 years now, South Sudan, within South Sudan now there are again different ethnic groups which are at clash with each other. So the complexity of the ethnic tribes in Africa is as such that there is a very dire resistance. There is a very desperate need to capture the power and be at the central authority. Now, अब South Sudan की बात करें, South Sudan is made up of 10 southernmost states. So 10 southernmost states of Sudan that comprised and made South Sudan. साउथ सुदान, आप इस बात को जान के हैरान रहेंगे, 60 डिफरेंट मेजर एथनिक ग्रुप साउथ सुदान में कोएग्जिस्ट करते हैं. 60 डिफरेंट मेजर एथनिक ग्रुप्स. सो रिलीजन, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग. सोमालिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, बिकॉज आई हैव स्टडीड अफ्रीका वेरी एक्सटेंसिवली, आई हैव टॉट अफ्रीका टू मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स वेरी एक्सटेंसिवली. वन थिंग व्हिच आई हैव कम अक्रॉस इज दैट मोर देन रिलीजन, इट इज योर ethnicity. It is your ethnicity, it is your tribal culture, which plays a very polarizing, which has a very polarizing impact upon the power structures in Africa. ये देखिए मैप को देखिए, पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ सुदान को देखिए. ठीक है, साउथ सुदान में यहां पे 10 सदर्न मोस्ट स्टेट्स थे सुदान के, उन्होंने बनाया साउथ सुदान. साउथ सुदान बना 2011 में जब इंडिपेंडेंट हुआ. अब विद इन साउथ सुदान मैं कुछ ऐसे रीजन्स को मार्क कर रहा हूं, और प्लीज साथ के साथ आप भी मार्क करना, जहां पे अभी पिछले कुछ टाइम से जो सिविल वॉर है विद इन साउथ सुदान काफी ज्यादा है. तो जैसे एक तो आपका रीजन है अपर नाइल, देन आपका प्रोविंस है जोंगले, और एक है आपका ये यूनिटी एंड लेक्स वाला एरिया. यहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, यहां पे सबसे ज्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, प्राइमरीली 2 ट्राइब्स के बीच में. मैं उन ट्राइब्स का अभी आपके साथ जिक्र करूंगा, थाम के बैठिए. अभी ये इंडियन एक्सप्रेस में अभी ये कल ही न्यूज में आया था, साउथ सुदान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर सिविल वॉर. ये यूएन के एनवॉय टू साउथ सुदान ने इस बात की चेतावनी दी है. सिचुएशन साउथ सुदान में इतनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, ये कहा था निकोलस हेसम ने, जो कि हेड ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन है साउथ सुदान में. उन्होंने ये कहा था कि पीस एफर्ट्स को रिस्टोर करने के लिए इस कंट्री के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि साल्वा कीर और रिएक माशार, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके लॉन्ग लास्टिंग पीस आ सकती है. जरा सर मुद्दा क्या है, जो साल्वा कीर है, मैं आपको भी तस्वीर में भी दिखाऊंगा, वो एक डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी में से आते हैं. साल्वा कीर आते हैं दिनका एथनिक कम्युनिटी में से, और जो वाइस प्रेसिडेंट रेक मशार हैं वो आते हैं न्योर एथनिक ग्रुप में से. अभी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये 2 ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे नोट कर लीजिए, दिनका एंड न्योर. 2011
2011 में ऑलमोस्ट यूनानिमसली 99% ऑफ द सिटीजंस ऑफ साउथ सुडान उन्होंने वोट किया था एक रेफरेंडम में कि हम एक अलग से अपना देश बनाना चाहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि 1982 से 2005 के बीच में सूडान में एक सिविल वॉर हुआ था, सेकेंड सिविल वॉर इन सूडान। जो पहला सिविल वॉर सूडान में हुआ था वो हुआ था 1956 से लेके 1982 के बीच में। अब ये जो सेकेंड सिविल वॉर सूडान में हुआ था, इसका आउटकम क्या था? इसका आउटकम ये था कि ये तय किया गया था, सूडान ने ये तय किया कि आने वाले 6 सालों में हम एक रेफरेंडम करेंगे, साउथ सूडान को हम आजादी देंगे। और वो रेफरेंडम 2011 में हुआ, जहां पे 99% ऑफ द पीपल ऑफ साउथ सूडान ने कहा कि हां हम आजादी चाहते हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। शुरुआती सालों में जब साउथ सूडान को इंडिपेंडेंस मिला, तभी जो फिजर्स थे, जो डिफरेंसेस थे बिटवीन द टू डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स विच इज दिनका एंड न्यूर, वो हमारे सामने दिखने शुरू हो चुके थे, वो न्यूज में, मीडिया में आने शुरू हो चुके थे। करप्शन, वीक गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन रिजीम्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे अफ्रीका को डुबा के रखा है, एंड साउथ सूडान इज नो एक्सेप्शन। यहां पे तस्वीर में देखें, जिन भाई साहब ने कैप पहनी है वो है प्रेसिडेंट, और जिन भाई साहब ने कैप नहीं पहनी है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये है प्रेसिडेंट साल्वा कीर, और ये जो है ये है वाइस प्रेसिडेंट रीक मचार। तो ये दोनों जो लोग हैं, लड़ाई इन दोनों के बीच में है, लड़ाई जरा सर इन दोनों के लॉयलिस्ट्स के बीच में है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि साल्वा कीर को बैक करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट रीक मचार को बैक करती है। दोनों ही लोग, दोनों ही द नंबर 1 एंड द नंबर 2 इन साउथ सूडान, दोनों ही लोग डिफरेंट कम्युनिटीज में से आते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगेन यहां पे तस्वीर में देखें, ये हैं आपके प्रेसिडेंट, यहां पे ये जो टोपी में बैठे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, प्रेसिडेंट साल्वा कीर, और ये है वाइस प्रेसिडेंट। ये अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है साउथ सूडान के सिंस 2020। पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा शेयर किया गया है कि इस कम्युनिटी के, यानी कि न्यूर कम्युनिटी के लोगों को, न्यूर कम्युनिटी के लोगों में से एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, ताकि न्यूर कम्युनिटी को लगे कि हमको भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ पावर मिल रही है, कुछ हमको भी इंपॉर्टेंस मिल रही है। और दिनका कम्युनिटी में से जो आते हैं साल्वा कीर, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट है 2020 से। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि साउथ सूडान में चलो 2 सिविल वॉर तो सूडान में हो गए, 1956 से लेकर 1982 और 1982 से लेकर 2005, फिर 2011 में बनता है आपका साउथ सूडान। 2013 से साउथ सूडान में फिर से सिविल वॉर चल रही है, यानी कि सिविल वॉर के बाद बना साउथ सूडान, और सिविल वॉर बनने के बाद फिर से उसी देश में सिविल वॉर हो रही है। तो सोचो कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन है वहां पे। अब साउथ सूडान में 2013, 2015, 2018 3 बारी पीस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। नाउ 2013 में जब ये पावर स्ट्रक्चर डिजाइन करा गया कि हाँ भी दिनका कम्युनिटी के लोग में से साल्वा कीर बनेंगे प्रेसिडेंट, और न्यूर कम्युनिटी के लोग में से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे ये जो भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका, रीक मचार। लेकिन उसके बाद बावजूद भी इतनी इनसिक्योरिटी थी दोनों कम्युनिटी के लोगों में कि 2013 में प्रेसिडेंट साल्वा कीर ने ये एलिगेशन लगाया वाइस प्रेसिडेंट पे कि ये मेरे खिलाफ मिलिट्री कूप करना चाहते हैं, और वो मिलिट्री कूप में, तख्ता पलट में इनके लोग भी इनके साथ जुड़े हुए, इनके जो लोग हैं, इनके कम्युनिटी के जो लोग हैं, यानी कि जो न्यूर कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, नाउ दिनका एथनिक ग्रुप अलाइन करा कीर के साथ, साल्वा कीर के साथ जो कि प्रेसिडेंट है, एंड दोस्त फ्रॉम द न्यूर एथनिक ग्रुप दे सपोर्टेड मचार। अब इन दोनों कम्युनिटी के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, और कौन से प्रोविंसेस में? साउथ सूडान के 3 मेजर प्रोविंसेस हैं, जोंगलाई, अपर नाइल एंड यूनिटी प्रोविंस। ये 3 मेजर प्रोविंसेस हैं, ये 3 मेजर प्रोविंसेस हैं विद इन साउथ सूडान, जहां पे ज्यादा सिविल वॉर देखने को मिल रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साउथ सूडान में अपार्ट फ्रॉम द सिविल वॉर ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा भुखमरी है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेव क्राइसिस है, हंगर का, अंडर नरिशमेंट का, मैल न्यूट्रिशन का। ऑलरेडी वहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द ड्राउट्स, बिकॉज ऑफ द इराटिक मॉनसून्स। टू एड टू दैट, दिस सिविल वॉर इज टेयरिंग अपार्ट द कंट्री. So many people are dying. Now you have to make a choice that whether you want to promote your ethnicity, whether you want to promote your tribe, or you want to promote hunger and education for your children. This is one choice which the people of South Sudan has to make. अगर मैं कंट्री प्रोफाइल की बात करूं साउथ सुडान की, साउथ सुडान इज रिच इन ऑयल.
2011 में ये सूडान से इंडिपेंडेंट हुआ। 2013 के बाद अगेन मल्टीपल टाइम्स विद इन दिस कंट्री सिविल वॉर हो चुकी है। अब मैं कुछ मेजर कम्युनिटीज की बात कर रहा हूं आपके साथ, और आपको ना यहां पे एक एक्रोनिम बताऊंगा जिसके चलते आप जो मेजर कम्युनिटीज या जो ट्राइबल ग्रुप्स है साउथ सूडान में उनको आप याद रख सकते हैं। पहले वन बाय वन पढ़ लेते हैं। एक तो है दिनका 40% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सिल्वा कीर, वो भी इसी कम्युनिटी में से आते हैं। देन द सेकंड कम्युनिटी, द सेकंड एथनिसिटी विच इज द डोमिनेंट एथनिसिटी इज द न्यूर। न्यूर मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन साउथ सूडान। अगेन अगर हम रीजन्स की बात करें, अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, ऑलमोस्ट सेम प्रोविंसेस में जहां पे दिनका मौजूद है, उसी के साथ वाली प्रोविंसेस में न्यूर एथनिसिटी के लोग भी मौजूद हैं। देन यू हैव आजांदे, दिस इज अबाउट 10% ऑफ साउथ सूडान पॉपुलेशन। देन यू हैव शिलूक, शिलूक रिजाइड करते हैं अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द नाइल रिवर इन द अपर नाइल स्टेट, जो कि सूडान, साउथ सूडान को बॉर्डर करता है। एंड देन यू हैव बारी। अब इन ट्राइब्स को, इन एथनिसिटीज को याद करने के लिए कौन सा एक्रोनिम है, तो मैंने आपको 5 ट्राइब्स बताई हैं। मैंने आपको यहां पे 5 आपके साथ मैंने एथनिसिटीज डिस्कस करी हैं, दिनका, न्यूर, आजांदे, शिलूक एंड बारी। तो उसको कैसे याद रखेंगे? बी सैंड, ठीक है। एस यानी कि शिलूक, ए यानी कि आजांडे, एन यानी कि न्यूर, डी यानी कि दिनका और बी यानी कि बारी, बी सैंड, ठीक है। इससे हमको याद रहेगा। यहां पे मैप देख सकते हैं, मैप में डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो मेजर ट्राइब्स हैं, जो मेजर एथनिसिटीज हैं, वो कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन साउथ सूडान। वंस अगेन यहां पे तस्वीर में आप देख सकते हैं जो 2 पावरफुल व्यक्ति हैं जिनके बीच में लड़ाई है। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, सूडान में भी, नेबरिंग सूडान में भी लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। एक तो सूडान के जो आर्मी जनरल हैं, जनरल फतेह अल बुरहान, और दूसरा जो कि सूडान के पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेड है यानी कि हमिद दगालो। सूडान में भी 2 लोगों के बीच में पावर टसल है, साउथ सूडान में भी 2 लोगों के बीच में पावर टसल है। सूडान में अगेन वहां पे एथनिसिटी की बात इतनी नहीं आती जितनी एथनिसिटी की बात साउथ सूडान में आती है। सो ये जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, द सिचुएशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बेस्ड अपॉन सेक्टेरियन लाइन्स। नाउ कीर is from the Dinka ethnic group and he leads the government forces against Mashar, who is a newer leader, newer ethnic tribe में से जो leader है। More than 40,000 people have died before a 2018 peace agreement brought them together in a unity government. 2018 peace agreement in South Sudan is also known as the revitalized agreement on the resolution of conflict in South Sudan. ये सितंबर 2018 में सूडान में खार्तूम में, सूडान के कैपिटल खार्तूम में साइन करा गया था। इस पीस एग्रीमेंट का जो कि 2018 में साइन किया गया था, इसका मकसद क्या था कि जो साउथ सूडान में सिविल वॉर चल रहा है 2013 से, उसको बंद किया जा सके, उसको रोका जा सके। और जो फोर्सेस हैं जो कि डिवाइडेड है अक्रॉस द लॉयल्टीज टू द प्रेसिडेंट एंड टू द वाइस प्रेसिडेंट, उनके बीच में समझौता किया जा सके। तो पीस एग्रीमेंट जो 2018 में साइन करा गया था, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ रिवाइटलाइज्ड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। इसमें से जो रीक मशार थे वो बने, रीअपॉइंट हुए एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। और एग्रीमेंट तय किया गया, पीस एग्रीमेंट 2018 में जो बनाया गया था उसके चलते तय किया गया कि पावर शेयरिंग कैसे रहेगा कीर, साल्वा कीर और मशार के बीच में। प्राइमरली ये 2 लीडर्स हैं, इनके बीच में पावर शेयरिंग एग्रीमेंट कैसे रहेगा वो डिसाइड किया गया था। बाकी जो छोटे मोटे और जो ऑपोजिशन लीडर्स थे बाकी डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज में से, उनका भी वहां पे तय किया गया था कि क्या रूल होगा, क्या उनको पोजीशन मिलेगा साउथ सूडान की गवर्नमेंट में, साउथ सूडान के कैबिनेट में। तो एक यूनिफाइड नेशनल आर्मी का निर्माण करा गया एज पर द पीस एग्रीमेंट इन 2018। नाउ 2015, 2017, 2018 3 बारी ऐसे सक्सेसिवली पीस एग्रीमेंट साइन करे गए, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी कम नहीं हुई। डिफरेंट जो फैक्शंस हैं विद इन द गवर्नमेंट ऑफ साउथ सूडान, उनके डिफरेंसेस अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। नाउ 2024 में एडिशनल पीस कीपर्स को और अर्जेंट फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था टू दो सेंसिटिव एरियाज इन साउथ सूडान जहां पे ज्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे ज्यादा सिविलियन डेथ्स हो रही हैं। मीनवाइल साउथ सूडान continues to suffer from one of the worst humanitarian crises in the world। और 2024 में टेक्निकली 2018 के एग्रीमेंट के बेसिस पे जो 2018 में पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके बेसिस पे दिसंबर 2024 में इलेक्शन शेड्यूल करे गए थे कि इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। बट आज मार्च 2025 आ चुका है एंड आज थिंग्स स्टैंड टुडे, अभी सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है साउथ सूडान में और इलेक्शंस को अब डिले कर दिया है। जहां पे दिसंबर 2024 में होने थे, अब वो इलेक्शंस दिसंबर 2026 में पोस्टपोन कर दिए हैं।
अब एक और इंपॉर्टेंट एक्टर के बारे इसी वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, वो है व्हाइट आर्मी। व्हाइट आर्मी ये वो आर्मी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट रिक मशार को बहुत लॉयल्टी दिखाती है। क्यों? क्योंकि ये जो व्हाइट आर्मी है उसी की कम्युनिटी में से आती है, उसकी कम्युनिटी जो कि न्यूर कम्युनिटी है, NEUR, जो कि न्यूर कम्युनिटी है, उसी की कम्युनिटी में से आती है। अब आप कहेंगे इनका नाम व्हाइट आर्मी क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्शन इनका ब्लैक है। व्हाइट आर्मी इस करके है बिकॉज इन लोगों ने क्या किया है, इनका एक ट्रेडिशन है कि ये ऐश से अपने आप को कवर रखते हैं, तो वो व्हाइट कलर की ऐश होती है एंड देयरफॉर वो ऐश से अपने आप को कवर क्यों रखते हैं? ताकि ये अपने आप को इंसेक्ट से बचा सके। तो एक थोड़ा फनी तरीका बताऊं याद रखने का, अगर आपको ये बुरा ना लगे। अब मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट का नाम रिक मशार है, रिक मशार। अब आप मशार को मच्छर भी पढ़ सकते हो, मशार को मच्छर भी पढ़ सकते हो। तो ये भाई साहब क्योंकि मच्छर है, तो मच्छर से बचने के लिए, इंसेक्ट से और मॉस्किटो से बचने के लिए जो व्हाइट आर्मी है अपने आप को व्हाइट ऐश से कवर करती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि व्हाइट आर्मी कौन है, व्हाइट आर्मी कौन सी एथनिसिटी से आती है और वो किसके टुवर्ड्स लॉयल है। व्हाइट आर्मी रेक मशार यानी कि मच्छर के टुवर्ड्स लॉयल है। और ये जो व्हाइट आर्मी है ये इनफॉर्मल मिलिटेंट ग्रुप है, कोई फॉर्मल, ये मत समझना कि कोई फॉर्मल मिलिटेंट ग्रुप है या फॉर्मल आर्मी है साउथ सुदान की, नहीं, ये एक इनफॉर्मल मिलिटेंट ग्रुप है, एक इनफॉर्मल मिलिटेंट ग्रुप है साउथ सुदान में, जिसमें से ज्यादातर अधिकतर लोग जो हैं वो न्यूअर कम्युनिटी के हैं, NUER, न्यूअर कम्युनिटी के हैं। और इस कम्युनिटी के लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब साउथ सुदान और सुदान के बीच में झगड़ा था, यानी कि जब सुदान में 2 बार सिविल वॉर हुआ था। तो ये व्हाइट क्यों कहा जाता है वो आपको मैंने रीजन बता दिया। साउथ सुदान का कंट्री प्रोफाइल एक बार फिर से देख लेते हैं। साउथ सुदान, देखो साउथ सुदान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ऊपर सुदान आ गया, देन यहां पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया, देन यहां पे नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, यहां पे भी अगेन तुत्सीज एंड हुतूस 2 कम्युनिटी हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जहां पे काफी कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ DR कॉन्गो, नॉर्थ किवू, साउथ किवू। अगर आप अभी तक तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 2 महीने में आपका प्रीलिम्स का पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ किवू कहां पे है, साउथ किवू कहां पे है, कॉन्गो में क्या हो रहा है, M23 रिबेल्स के बारे नहीं पता तो मुझे बता देना, एक वीडियो में बना दूंगा। यहां पे केन्या है, यहां पे इथियोपिया है। अब देखो विद इन साउथ सुदान एंड सुदान एक एरिया है, इसका नाम क्या है, आबे एरिया। वैसे तो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है सुदान और साउथ सुदान के बीच में, जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, लेकिन ये आबे एरिया एक ऐसा एरिया है जो अभी भी अंडर UN पीस कीपिंग मिशन रहता है। ये आबे एरिया अभी भी डिस्प्यूटेड है बिटवीन सुदान एंड साउथ सुदान। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज टेक्निकली साउथ सुदान ये कहता है कि वहां पे उसके कम्युनिटी के लोग रहते हैं आबे में, लेकिन आबे में बिकॉज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं, मिनरल वेल्थ वहां पे पाया गया है, तो इस करके सुदान अभी नहीं चाहता कि ये एरिया डायरेक्टली साउथ सुदान के कंट्रोल में आ जाए। तो ये जो एरिया है अभी भी डिस्प्यूटेड है, अभी भी टेक्निकली ना तो ये सुदान का है ना तो ये साउथ सुदान का है। दोनों ही कंट्रीज ये एरिया को अपना क्लेम करते हैं। ये आबे एरिया सुदान और साउथ सुदान के बॉर्डर पे लाई करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज नाइदर अंडर साउथ सुदान नॉर अंडर सुदान। सो दोस्तों ये कुछ बातें हमने यहां पे डिस्कस करी हैं। उम्मीद करता हूं साउथ सुदान में जो सिविल वॉर हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके चलते आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। और दोस्तों मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं कि मेरा IR का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स खत्म हो चुका है। कंप्लीट IR फॉर UPSC प्रीलिम्स 2025 खत्म हो चुका है। 15 घंटों का ये क्रैश कोर्स था, ये लाइव था, लेकिन अगर आप अभी भी इसको अवेल करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। महज 2974 की कीमत पे आपको ये मिल जाएगा। 15 घंटों में बेहतरीन शानदार IR का UPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स था ये। और दोस्तों बाकी हमारा रैपिड रिवीजन राउंड चल ही रहा है 28 मार्च को, विच इज डे आफ्टर, विच इज जस्ट डे आफ्टर टुमारो। 28 मार्च को मैं रैपिडली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स विद इन 8 to 9 आवर्स कवर करने वाला हूं। तो अगर आपने नहीं जुड़े, अगर आप रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़िए, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी लीजिए। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।